students, a very good evening to all of you. How are you all? So I hope you all are happy and safe. So students, in the last video I was teaching subject-verb agreement and only 3 rules I have taught in that video. And today again I am going to continue the same topic. The topic is subject-verb agreement and it is the second video. Okay. And before I start, I would like to request to all of you, please like, subscribe and comment on my channel. If you really like the video, please do. So students, now let's begin the topic. So 3 rules we have already completed. पहला रूल हमने पढ़ा था, सबसे पहले तो जानते थे हम कि we have to use the verb according to the subject. सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी. सेकेंड रूल हमने पढ़ा था कि दो सब्जेक्ट्स हो, दोनों ही सिंगुलर हों. फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम dash going, तो क्या होगा are going. Why? Because two subjects are there, both are singular, and if two singular subjects are there, we use plural verb. ऐसे ये subjects कैसे थे? राम एंड श्याम नाउन थे. नाउन के प्लेस में प्रोनाउन आ जाता है. बाय द वे he and she, you and me, I, कुछ भी होगा तो we always use plural verb. देन हमने पढ़ा था बेटा कि अगर दो सब्जेक्ट्स हमारे हों और दोनों और से जुड़े हों, और से, तो if there are two subjects and joined with or, so we use singular subject. For example, Ram और श्याम, राम और श्याम dash present there. So राम और श्याम, आप दो राम श्याम दो नहीं है, दो में किसी एक की बात हो रही, तो we use singular verb. So राम और श्याम is present there. Okay. So now let's begin the fourth rule. The fourth rule is if there are two subjects, first subject, subject number 1, subject number 2, second subject. There are two subjects and both the subjects are joined with and not. Joined with and not. हमारे दो subjects और दो subject किससे जुड़े? And not से जुड़े हुए हैं. So we use the verb according to the first subject. Use the verb according to the first subject. जो हमारा पहला subject आया verb उसके according ही आएगी. चाहे एक subject हो, दो हो, तीन हो, how many are there, that does not matter. Whatever will be the first subject, we use the verb according to the first subject. See here, for example, you and not I. You and not I. Dash going there. Dash going. हमारे पास यहाँ पे है am, is, are. So now we have to fill the correct verb. See, हम नॉर्मल देखेंगे तो you and not I, am होना चाहिए I के साथ, am आएगा. और but no, हमारा am नहीं आएगा. What is the first subject here? पहला subject हमारा क्या है? You है. ये you first subject है और I हमारा क्या है बेटा? Second subject है. पहला subject क्या है? You है. Second subject क्या है? I है. तो मैंने रूल बताया है आपको. If two subjects are there and both are combined with and not, we use the verb according to the first subject. पहला subject हमारा क्या है? You है. और आपको हम ऑलरेडी बता चुके you हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही कैरी करता है. You हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही कैरी करता है. तो you के लिए क्या जाएगा? is बिल्कुल नहीं आएगा, am बिल्कुल नहीं आएगा, क्या आएगा? are आएगा. क्या आएगा? are आएगा. This is correct. You and not I are going there. Okay. So this is the rule number 4 that we have completed. Now I will teach you the rule number 5. It is also very important. Let's see everybody rule number 5. Just give me 1 second. So हमारा तो रूल नंबर 5 है, ध्यान दीजिएगा. If there are two subjects, first subject, पहला सब्जेक्ट हमारे पास और ये सब्जेक्ट कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है like, unlike, ये जुड़ा हमारा like से और unlike और beside से with है in addition to, beside, with, in addition to, beside with, in addition to, along with. यहाँ ध्यान दीजिए beside नहीं besides है और along with हो गया. इसके बाद together with, then last हमारा as well as. If there are two subjects, this is the second subject
if there are two subjects and both the subjects are joined with, it is very very important for the students of, as I already told you, 6 to 12 and UPTET examination, CTET examination. Please, if two subjects are there, join with like, unlike, besides, with, in addition to, along with, together with, or as well as, तो बात आती है हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? तो वी ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. जो हमारा पहला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा? दिस इज द फर्स्ट सब्जेक्ट, दिस इज द सेकंड सब्जेक्ट. सो हेल्पिंग वर्ब, ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ ब्रैकेट में तो मिस नहीं होगा आपको. हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट. ठीक है? If there are two subjects and both are joined with like, unlike, besides, with, in addition to, along with, together with, और as well as, अगर इन वर्ड से जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? We use the helping verb according to the first subject. ध्यान दीजिएगा क्लास 10 के स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में पैसेज फिल करने के लिए आता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो. आपको शॉर्ट स्टोरी या कोई इंसिडेंट आपको दिया होगा एंड यू हैव टू फिल द वर्ब्स, और वो 8 मार्क्स का होता है, सीबीएसई में शायद 4 या 5 मार्क्स का होता है, जो भी है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड यूपीटेट एग्जाम के जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो ध्यान रखिए, आज के एग्जाम में ये फॉर मोस्ट क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको वर्ब के मिलने ही मिलने हैं. ओके, सी फॉर एग्जांपल, लेट्स सी द एग्जांपल एवरीबॉडी. For example, I have written here, he as well as I. He as well as I this is the example. He as well as I going to the park. तो रूल आपका क्या था? If two subjects are there, first subject, second subject is I, joined with as well as. Okay, two subjects are there. If they have joined with as well as, so what do? We use the verb according to the first subject. First subject हमारा क्या है? He है. तो he के लिए for example आपको hint दी गई होगी. Hint हो गया आपकी is, am, are. तो I के साथ तो is am आता है, but am wrong है क्योंकि हमें पता है किससे जुड़ा है? as well as से जुड़ा है. आर बिल्कुल भी रॉन्ग है क्योंकि ही के लिए आर नहीं आएगा, ही सिंगुलर है, सिंगुलर में क्या आएगा? इज आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इज. दिस इज करेक्ट. ओके, सो दिस इज रूल नंबर 5. रूल नंबर 5. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द रूल नंबर 6. अब हम रूल नंबर 6 देखते हैं. बहुत क्विक पढ़ाऊंगी मैं, ध्यान दीजिएगा. रूल नंबर 6. रूल नंबर 6 हमारा, ये इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं. ध्यान दीजिए, आपने सुना होगा ईदर और, नीदर नॉर. ईदर और, नीदर नॉर, ये आपने बहुत सुना होगा. नॉट ओनली बट ऑल्सो, बहुत से क्वेश्चंस में ये सेंटेंसेस होता है, वर्ब फिल करनी होती है, बहुत कंफ्यूज होते हैं. आज मैं आपको सिखाती हूँ. देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सेंटेंस में दिया हुआ है ईदर, नीदर, not only plus subject plus, मान लीजिए आपको दिया है either, neither या not only plus first subject. this is the subject number 1. एक सब्जेक्ट दिया है, इधर के साथ क्या आता है? और. नीदर के साथ क्या आता है बेटा? नॉट ओनली बट ऑल्सो प्लस सेकेंड सब्जेक्ट. बहुत ज्यादा ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सब बच्चे ध्यान से रखेंगे. इफ देयर आर टू सब्जेक्ट्स एंड दे आर जॉइंड विद ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो. ठीक है, 2 सब्जेक्ट से हमारे ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर वो ज्वाइन है, सो अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी. सो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द, इस रूल को नोट कर लीजिए सारे बच्चे. helping verb
according to the nearest सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब कहां से आएंगे? अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, मतलब जहां पे हमें वर्ब फिल करनी है उस वर्ब के जो ज्यादा करीब सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, हम एग्जांपल्स आपको क्लियर करते हैं, ध्यान दीजिए। छोटा सा एग्जांपल है, देखिए लिखा है ये हमारा दिया है either she or they dash it, either she or they dash it। तो हमने फटाफट क्या पहले नोटिस किया, there are two subjects she and they, these are two subjects, और हमारा किससे ज्वाइन है? either or से, either or से। तो मैंने बोला आपको फिल कहाँ करना है? यहाँ फिल करना है। तो ये फिलअप्स के पहले नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? ये क्या है? नियरेस्ट सबसे करीब में सब्जेक्ट क्या है? ये, क्योंकि तो ये तो फारदेस्ट हो गया, बहुत दूर हो गया, ये सब्जेक्ट दूर है, ये पास है। तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या हमारा? दे है, तो दे के हिसाब से हमारे पास क्या आना चाहिए? आपको पता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाली जो सेंटेंस है, हमारे पास दो सब्जेक्ट्स, दो वर्ब्स दी है, वांट एंड वांट्स। आपको ऑलरेडी पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट सिमिलर होता है, इफ द सब्जेक्ट इज सिमिलर, सो वी ऐड एस और एस इन द फॉर्म ऑफ वर्ब। हम सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस ऐड करते हैं, सब्जेक्ट क्या है? सिमिलर है। लेकिन हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट वो ये कैसा सब्जेक्ट है बेटा? ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब की फॉर्म में एस और एस कभी नहीं आता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वांट। क्या हो जाएगा? वांट। ओके, नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। आप देखिए तो आपके लिए और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा है not only you, not only you, but also I, not only you but also I not only you but also I, सिर्फ तुम ही नहीं मैं भी suffering from it, सफर कर रहे हैं इससे। So not only you but also I, आपको पता है पहला सब्जेक्ट क्या है? you है, दूसरा सब्जेक्ट क्या है हमारा? I, this is the second subject, this is the first subject। दो सब्जेक्ट्स हैं and they are joined with not only but also, not only but also। आपको रूल तुरंत याद है, क्या याद आया? use the verb according to the nearest subject। nearest subject हमारा क्या है? I है। क्या है? I है। हम you के हिसाब से कोई वर्ब नहीं लगाएंगे। हमारे पास यहाँ पे ये दिया हुआ है हिंट में, देखिएगा हिंट में हमारे पास है आर एंड एम। तो अगर यू के हिसाब से लगाएंगे तो आर आएगा, बिकॉज यूज प्लूरल, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। आई लगाएंगे तो आई के साथ एम आएगा। तो हमें रूल याद होना चाहिए। रूल हमारा क्या है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो अगर है सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हैं, वी ऑलवेज यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। ये हमारा क्या है? नियरेस्ट सब्जेक्ट। ये क्या है? नियरेस्ट सब्जेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा? एम आएगा। M is correct, R is wrong. Okay, so hope this rule is also clear. Okay students, now let's see the rule number 7. रूल नंबर 7 देखते हैं हम। स्टूडेंट्स फिर से एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा हो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे कुछ वर्ड्स है हमारे पास, देखिएगा नेम ऑफ, ये नेम दिए हुए हैं, किसके नेम से? देखिएगा कोई गेम का नेम हो, किसी बुक का नेम है, न्यूज़पेपर का नेम है, बुक का नेम है,
न्यूज़पेपर का नेम है, ओके, और इसके पहले क्या है, सॉरी, किसी डिसीज का नेम है, किसी सब्जेक्ट का नेम है, या किसी ड्रामा का नेम है, ठीक है। अगर हमारे पास ये नेम्स है, गेम का नेम है, बुक का नेम है, न्यूज़पेपर का नेम है, डिसीज का नेम है, सब्जेक्ट का नेम है, या फिर किसी ड्रामा का नेम है, so always use singular helping verb. With all these name always use singular helping verb. अगर वन की बात हो क्या आएगा बेटा, singular helping verb, singular helping verb, okay. फॉर एग्जाम्पल अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिए एग्जाम्पल एक देखते हैं हम यहाँ पे, ये मैं सब्जेक्ट और ड्रामा को थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, ड्रामा, ठीक है। इनमें से कोई भी अगर नेम आता है सो वी ऑलवेज यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे है यहाँ पे यू पीरियड वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ये एग्जांपल आपके कई बार आ चुका है और ये बहुत कंफ्यूज करता है। एक मम्स नाम है, ये बीमारी का नेम है, डिसीज का नेम है, और एक बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स इज अ प्ले, बिलियर्ड्स इज अ गेम, इट्स अ स्पोर्ट, ओके। सो बिलियर्ड्स बहुत आता है क्योंकि उसमें ऑलरेडी एस जुड़ा हुआ है, मम्स में भी एस जुड़ा हुआ है, बच्चे सोचते हैं प्लूरल है, बट ये प्लूरल नहीं है, इट इज अ नेम ऑफ अ डिसीज, इट इज अ नेम ऑफ अ डिसीज, ओके। मम्स डैश आ मम्स इज अ डेंजरस डिसीज, मम्स इज अ डेंजरस डिसीज। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया हुआ है, इज है, आर है, ओके, क्या आएगा, मम्स क्या है, आपने तुरंत आपको रूल याद आना चाहिए कि मम्स क्या है, मम्स इज द नेम ऑफ अ डिजीज। मान लीजिए मम्स की जगह आपको तो बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स डैश अ इंटरेस्टिंग गेम, या फिर यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम होता कि द टाइम्स ऑफ इंडिया डैश अ वेरी गुड न्यूज, वेरी नाइस न्यूज़पेपर, या मर्चेंट ऑफ वेनिस डैश इज एन इंटरेस्टिंग ड्रामा, या फिर किसी बुक का नहीं होता रामायणा डैश अ होली बुक ऑफ हिंदूज। तो अगर इनमें से किसी का भी नेम आता है, डोंट फॉरगेट इट, इसमें से कोई भी नेम अगर आता है तो उसके बाद क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब, क्या लगाएंगे, सिंगुलर। सो मम्स, इसके एस पे आप मत जाइए, ये डिसीज का नेम है, डिसीज का नेम है, मम्स इज अ डेंजरस डिसीज, मम्स इज अ डेंजरस डिसीज, ओके स्टूडेंट्स, होप ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 8, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ वर्ड्स होते जैसे कि वन ऑफ, एवरी ऑफ, सी हियर, वन ऑफ, एवरी ऑफ, ईच ऑफ, बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, इवन मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी जब तक मैंने ये रूल अच्छे से स्टडी नहीं किया, इसके पहले मैं भी हमेशा कंफ्यूज होती थी वर्ब्स में, यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, वन ऑफ, एवरी ऑफ, ईच ऑफ, और ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ, नन ऑफ। अगर इनमें से कोई भी बेटा, कोई भी वर्ड आपको वर्ड मिल जाए, हम लोग बोलते ईच ऑफ, मामा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, हाँ, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, सो इफ देयर आर ईच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, अगर आपको ऐसा कोई वर्ड आपके स्टेटमेंट में मिल जाता है तो हमें क्या करना है, वी ऑलवेज यूज सिंगुलर हेल्पिंग, singular helping verb, singular helping verb. If there are these words, one of, every of, each of, either of, neither of और none of, अगर आपका present है तो क्या करेंगे, we always use singular helping verb, we always use singular helping verb. Example से बहुत ज़्यादा clear हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे example है हमारा, each of you, each of you dash being
each of you dash being punished, each of you dash being punished। तो यहाँ पे हमने जैसे देखा each of है, हमें पता है each of के साथ क्या आता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और हमें हिंट में यहाँ दिया हुआ है has और have। तो स्टूडेंट्स बताइए क्या आएगा? यस, each of है। तो you, हमने यहाँ पे you देखा, तो you तो हम जानते हैं you के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है, you के अकॉर्डिंग तो have आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे have लगा देंगे तो ये गलत है, have बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा हमारा, has been। अगर हम you के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये गलत है, बट हम इसके अकॉर्डिंग क्या देखेंगे, each of। अगर हमारे स्टेटमेंट में each of, every of, either of, neither of, one of, none of ऐसा कोई वर्ड आ रहा है, so we always use singular helping verb। और सिंगुलर क्या है हमारा, has सिंगुलर है, have क्या है, प्लूरल है। ओके, so has been punished, has been punished। so students, I hope जितने भी रूल मैंने आपको बताए 8 रूल्स आपको आ गए होंगे। इसके बाद नियर अबाउट 6 रूल्स अभी और पेंडिंग है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। सो बिफोर आई stop the video, before I stop talking, I wanted to request to all of you, please do like, subscribe and comment on the video if you find it useful. So thank you everybody.